So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute recording another letter just of the same kind. If you will check the YouTube and if you will check yesterday's teaching, it's exactly the same letter because that's what I told yesterday. So I'm just gonna start it from the scratch so that you guys do not get confused if you are listening to this video only, so that you do not have any confusion. So I should take it as a new letter. But yes, we covered it yesterday. So whosoever are our YouTube channel users, so they can see that in the last three letters which I have uploaded, it's exactly the same thing, kind of a discharge back letter. So yeah, how do we know? Yesterday we discussed how can we get to know that this is a discharge back letter, that the patient is coming from the same place and going to the same place. So using the information in the case notes, write a letter to Miss Samantha Brown. So first of all, we should know to whom we are writing the letter. हम लेटर किसको लिख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. So that has been given that we are writing the letter to the senior nurse at Grevas Nursing Home. तो हम जो नर्स को लिख रहे हैं लेटर, सीनियर नर्स हैं वो, और ग्रेवाज नर्सिंग होम में काम करते हैं. हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस्टर बेकर्स कंटिन्यूड केयर एट द नर्सिंग होम. तो मैंने कल आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताई थी. एक, कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये पर्सन ग्रेवाल नर्सिंग होम से है. सो जब आप इसके फर्स्ट पेज पे जाओगे लेटर के, एंड व्हेन यू विल चेक द सोशल बैकग्राउंड, यू विल गेट टू नो लिव्स एट ग्रेवाल्स नर्सिंग होम फॉर 4 years. So that means I can write this letter that who has been client of, या पेशेंट, नर्सिंग होम के पेशेंट भी हो सकते हैं. सो हु हैज बीन योर क्लाइंट या योर पेशेंट सिंस लास्ट 4 years. और ये लाइन कनेक्ट कैसे करेगी? एंड वॉज रेफर्ड टू अस फॉर टोटल hip replacement. That is how you will write the first paragraph. I am writing this letter regarding this patient I'm writing this letter regarding Mr. X, who has been your patient since last 4 years and was referred to us, या यहाँ पे लिख सकते हो and was admitted to our hospital, थोड़ा अच्छा करने के लिए, and was admitted to our hospital for, आप ऐसा भी लिख सकते हो, for total hip replacement. So that is what should be the, so उसके बाद तो simple हो जाएगा, now the hip replacement has been done, और mobility good after, and his mobility is good after the operation. So now he is being discharged back and you are advised to follow few instructions. कल मैंने आपको 3 पंचेस बताए थे. फर्स्ट पंच यहीं पे who has been your patient. एक पंच आता है फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, that you are advised to follow few instructions for his speedy recovery, और ही इज बीइंग डिस्चार्ज बैक टू यूर नर्सिंग होम. सो सेकंड पंच लास्ट में आता है. तो मैं अगर फर्स्ट पैराग्राफ आपको कल के लेटर के लीग में पूरा लिख के दिखाऊं, सो दैट जो ये रिकॉर्डिंग पहली बार सुन रहे हैं उनको दिक्कत ना हो. हमें एड्रेस से पेशेंट के पता लग गया है दैट पेशेंट को हम सेम जगह पे भेज रहे हैं. सो यहां से शुरू होगा. आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु हैज बीन योर पेशेंट since last 4 years and was admitted to our hospital for total hip replacement. So this is the simple thing that you need to write, that he for total hip replacement. Now after operation, ये दे रखा है post operative operation, his mobility is good. तो उसकी mobility good है. Good. अब जब यही इस लेटर की सबसे जो आपको, जैसे मनजिंदर मैम इज हैविंग हर फर्स्ट डे, सो मनजिंदर मैम को बताया होगा कि हमें लास्ट में लिखना होता है कि इसको ये प्रॉब्लम है इसलिए आपके पास भेज रहे हैं. लेकिन जो ये वाले लेटर होते हैं जिसमें पेशेंट जहां से आता है वहीं पे वापस जाता है, उसमें आपको ये बात समझनी है कि पेशेंट यहीं से आया है, यहीं पे वापस जा रहा है, यानी हम उसको किसी केयर के लिए नहीं भेज रहे, हम उसको इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उसको वापस जाना ही यहीं पे है, क्योंकि वो उसका घर है, क्योंकि वहां पे वो 4 सालों से रह रहा है. तो इन लेटर में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है. सबसे पहला पंच आता है हु हैज बीन योर पेशेंट सिंस लास्ट 4 years एंड वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल फॉर दिस. नाउ आफ्टर ऑपरेशन हिज मोबिलिटी इज गुड. सो यहाँ पे लिखना है ही इज बीइंग डिस्चार्ज बैक टू योर नर्सिंग होम. तो हमेशा लिखना है टू योर नर्सिंग होम, नाम नहीं लिखना. सो अब देखो कहानी को अगर हिंदी या पंजाबी में करें, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस्टर एक्स
जो आपका पेशेंट है, जो आपका पेशेंट है ये हु हैज बीन, वैसे यहाँ पे ऐसे कर देते हैं हु हैज बीन लिविंग इन योर नर्सिंग होम, तो इससे हमारी हु हैज बीन योर रेजिडेंट, रहने वहीं पे रहता है ना, सो हु हैज बीन योर रेजिडेंट या हु हैज बीन रेजिडेंट, और भी अच्छा करने के लिए हु हैज बीन रेजिडेंट ऑफ योर नर्सिंग होम। अब बिल्कुल, अब देखो और भी अच्छा हो गया, तो थोड़ा थोड़ा पेपर में यही ट्राई करना होता है कि मैं और बेटर कैसे लिख सकता हूँ। सो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मी हु हैज बीन रेजिडेंट ऑफ योर नर्सिंग होम सिंस लास्ट 4 years एंड वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल फॉर टोटल रिप्लेसमेंट। नाउ आफ्टर ऑपरेशन हिज मोबिलिटी इज गुड, इसलिए हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं आपके नर्सिंग होम में, और आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है या एडवाइस किया जाता है, एंड यू आर एडवाइज टू फॉलो few instructions for his speedy recovery. So that is the first paragraph. तो फर्स्ट पंच आया यहाँ पे, आपका रेजिडेंट है, सबसे पहला पंच डिस्चार्ज बैक वाले लेटर में यहाँ पे आता है। सेकंड पंच फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में आता है, इसलिए हम वापस भेज रहे हैं डिस्चार्ज बैकवर्ड। जब हम बैकवर्ड लगते हैं तो उससे पता हो जाता है कि वापस भेज रहे हैं। सो इज बिंग डिस्चार्ज बैक टू योर नर्सिंग होम एंड यू आर एडवाइज टू फॉलो फ्यू इंस्ट्रक्शंस फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। सो दिस इज अवर फर्स्ट पैराग्राफ, या ये भी लिख सकते हैं एंड यू आर एडवाइज टू, जो वहां पे दे रखा है कंटिन्यू his care for his speedy recovery. Continue his ongoing, yeah, to continue his care. You are advised to continue his care. Yeah, you are advised to provide ongoing care. ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ये सभी ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए आप, मेरे को पता है कि अगर मैं ऐसे बार बार चेंज करता हूँ आप कंफ्यूज होते हो, बट दिस इज रिकॉर्डिंग, तो आप इसको 5 बार 10 बार भी सुन सकते हो कि मैंने क्या क्या ऑल्टरेशंस किए हैं। So I'm writing this letter regarding Mr. X, who has been resident of your nursing home since last 4 years and was admitted to our hospital. Now, after the operation, his mobility is good, so he's being discharged back to your nursing home, and you are advised to provide him ongoing care for his speedy recovery. So that is perfect letter. Now it is all good to go and perfect paragraph. बाकी हम लेटर के बारे में और जानते हैं, what else has been given in the letter, so we will try to sort out the rest of the data as well. So अब ये सिंपल हो गया, अब यानी इसका सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री तो लिखनी ही नहीं है, तो ये बात हमारी कल ही होगी थी, कल भी सेम लेटर थे कि एज यू नो वाला। अगर इसमें एज यू नो है तो ये हमने अगर कुछ रिलेट करने तो करते हैं, लेकिन बाकी देखते हैं। 4 दिन हमारे पास रहे, 3 सितंबर को आया था, यानी कि थर्ड फोर्थ, यानी 4th 5th 6th 7th, यानी कि 4 दिन पहले आया था, और लगभग टोटल 5 दिन हमारे पास रहा है सिटी हॉस्पिटल में। लेफ्ट टोटल हिप रिप्लेसमेंट के लिए आया था, आपके नर्सिंग होम में रहता है, रेडियो इंजीनियर है। अब देखो नर्सिंग होम वालों को तो ये सब पता होगा कि रेडियो इंजीनियर था, एज पेंशनर है, तो ये सब बातें नहीं लिखनी, ये सब डाटा इररेलेवेंट हो जाता है। जिसने भी सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री लिखी इस लेटर में, उसका लेटर वेस्ट हो गया, मतलब उसके मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपको ये प्लीज याद रखना है, टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब ये ग्रेवाल नर्सिंग होम, जैसे मनजिंदर मैम का आज फर्स्ट दिन है तो उनको लगेगा ये क्या है, तो ग्रेवाल नर्सिंग होम वो 4 सालों से रह रहा है, और जिसको हम लेटर लिख रहे हैं मैम, वो भी ग्रेवाल नर्सिंग होम को ही लिख रहे हैं। देखो सीनियर नर्स की ग्रेवाल नर्सिंग होम, यानी ये सीनियर नर्स उसको जानती होगी, इसलिए हमें गलती से भी सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री नहीं लिखनी है इस लेटर में, तो ये स्पेशल होता है इस लेटर का। तो यानी ये वाला सारा डाटा भी वेस्ट हो गया। वैसे अगर मिक्स करना होता है तो कैसे कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं जैसे उसने कहा, एज यू नो दैट ही वाज डायग्नोज्ड विद osteoarthritis in 2008 which required total replacement surgery, so the surgery was done। लेकिन वो थोड़ा सा रिलेट करना मुश्किल है क्योंकि ये 2 साल बाद की है, तो वही यार रिलेट करना है, तो हम पंजाबी में कैसे रिलेट करते हैं कि आपको तो पता ही है 2008 में इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ था, जिसके कारण से उसको टोटल रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई थी। So after 2 years, now he has undergone this surgery। ऐसा लिख सकते हैं। हाइपरटेंशन की ऑनगोइंग मैनेजमेंट, तो ऑल्सो यू आर वेल अवेयर दैट ही इज हैविंग ऑनगोइंग ब्लड प्रेशर, सो ही रिक्वायर्स मैनेजमेंट, सो हिज ऑनगोइंग मैनेजमेंट इज गोइंग ऑन। पर ये जबरदस्ती हो जाती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डाटा बढ़ाने के लिए लिखना पड़ेगा कि ये सब चीजें चल रही हैं, हम इसलिए कर रहे हैं। इसके अलावा मेडिकेशंस को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो चल ही रही होंगी। नर्स एंड मैनेजमेंट, डेली ड्रेसिंग ऑन द सर्जरी साइट वाज डन, सो यहाँ पे ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन डेली ड्रेसिंग ऑन द सर्जरी इंसिशन साइट वाज डन, एंड
Range of motion along with stretching and strengthening exercises were taught, क्योंकि एक्सरसाइजेस को हमेशा पढ़ाया जाता है, तो इसको हमेशा लिखना है were taught या were demonstrated. ये ज्यादा बेटर वर्ड होते हैं एक्सरसाइजेस के साथ. ठीक है, इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाज गिवन. अब स्टेपल्स को 21 तारीख को उतारना है, तो आज की डेट, टुडेज डेट क्या है लेटर में? टुडेज डेट है 7th. 7 + 14 2 वीक्स के बाद उतारना है, तो 7 + 14 = 21, यानी ये बिल्कुल सही दे रखा है. तो हमें कहना है कि स्टेपल शुड बी रिमूव्ड आफ्टर 2 वीक्स ऑन 21st. तो ये वाली लाइन ऐसे आएगी जब आप रिकॉर्डिंग में सुनोगे अच्छे से. फॉलो अप एंड एफबी टेस्ट वर कंडक्टेड. ये सिटी हॉस्पिटल कौन सा है? ये हमारा हॉस्पिटल. ये देखो सिटी हॉस्पिटल पहले भी दिया था, सिटी हॉस्पिटल में ही तो रिप्लेसमेंट हुई है, तो यहाँ पे लिखना है इन अवर हॉस्पिटल. सो बेसिकली फॉलो अप एफबी एंड यूईसी टेस्ट वर कंडक्टेड एट अवर हॉस्पिटल, एंड उससे क्या हुआ था? ही वाज फाउंड विद ड्रॉप्ड एचबी फॉर विच 3 यूनिट्स ऑफ आरबीसीज वर गिवन एंड नाउ हिज एचबी इज स्टेबल, but he requires ongoing management for anemia after the discharge. तो इस पैराग्राफ को आप इकट्ठे बना सकते हो. रिकॉर्ड also this was done in which HP was found to be 72 only, for which he required transfusion of 3 units of RBC. जिसके लिए का मतलब for which जिसके लिए हमने for which 3 units of packed RBCs were given and his HB got stable. स्टेबल हो गया, होने की इंग्लिश हमेशा गोट. प्लीज रिकॉर्डिंग में 3-3 4-4 बार सुनना. स्टेबल हो गया, तो दैट मींस हैज गोट स्टेबल. फिर यहीं पे इसको कनेक्ट करना होता है, बट ही रिक्वायर्स ऑनगोइंग मॉनिटरिंग फॉर दिस एंड दिस थिंग. तो आपको ये छोटा सा लिखना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस क्या कहना है कि गुड मोबिलिटी. नाउ द पेशेंट्स मोबिलिटी इज गुड. ही इज बियरिंग वेट विद द यूज ऑफ विली वॉकर एंड ही कैन वॉक the length of the ward without any difficulty. और ये वाली बात लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे रिकमेंडेशन दे रखी है तो इसको भी लिख सकते हैं. Also after the operation he has been disoriented regarding the time and place during the recovery, so he might be needing continued observation. So last में it would be greatly appreciated if we could monitor his medication, especially the pen and food, and preserve his skin integrity. Skin integrity को क्यों करना है? क्योंकि स्टेपल लगे हुए हैं, तो वो स्टेपल्स में मतलब उसके स्टिचेस ना हिल जाएं. Apart from this, exercise program should be continued and equipment are required which are Willy Walker, wedge pillow and toilet razor. मतलब 3 रिक्वायरमेंट चाहिए. इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड जो हैं विली वॉकर, वेज पिलो एंड टॉयलेट रेजर, जिसमें से की इंग्लिश इज ऐसी जगह पे आउट ऑफ विच 2 हमने अरेंज कर दिए हैं. वॉकर एंड पिलो will be provided by the hospital and razor should be arranged for 2 weeks by a social worker. तो ये सोशल वर्कर अरेंज करेगा for 2 weeks. So this is how the letter goes. अब एक बार आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैंने थोड़ा सा तेज बोला है, तो मैं अब आपको पूरा लेटर बोल देता हूँ. फर्स्ट पैराग्राफ तो हमने लिख ही दिया है. सेकंड पैराग्राफ में अब सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री तो आनी नहीं, तो ये लिख सकते हैं as second paragraph, as you know that he was diagnosed with osteoarthritis in 2008 which required total hip replacement surgery. So this time after 2 years hip replacement surgery was done. Also you are well aware that he has been suffering from hypertension for which ongoing management has been going on, and also he was taken care in the hospital as well for the same. ये paragraph खत्म. During our care, daily dressings on the incision site were done, and range of motion along with stretching and strengthening exercises were taught. Full stop. Along with that, occupational therapy was given. ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ब्लड टेस्ट वाली सबसे मुश्किल लाइन भी है, पर इसके ऑनगोइंग मैनेजमेंट चाहिए तो लिख देते हैं. Also, follow-up FB and UEC tests were done during the hospitalization, in which HP was found to be only 72. But after the transfusion with the 3-unit red blood cells, it got stable. But even after discharge, it requires ongoing monitoring. Now the patient is good with the mobility and is bearing weight well, but he requires Willy Walker to walk along the ward. Also, there has been a post-operative disorientation regarding time and place. So continued observation is highly recommended.
Also, it would be greatly appreciated if you could monitor the medications and preserve his skin integrity. Further, it is important to be noted that exercise program should be continued. Now, the patient requires three equipments, which are Willy Walker, wedge pillow, toilet razor, comma, out of which, comma, Willy Walker and pillow have been arranged by the hospital, and razor would be organized by the social worker from the medical supplier. बस खत्म. फिर उसके बाद should you require further information, feel free to contact. So I've spoken the whole letter again, but now I will take your doubts, क्योंकि आज थोड़ा सा तेज गया है, क्योंकि ये कल वाला लेटर था, कल भी हमने सेम लेटर किए थे, इसलिए तेज गया है. तो एक तो लेटर के तीनों पंचेस आगे जो हमने कल डिस्कस किए थे, जो हमने यूट्यूब पे भी अपलोड किए हैं. थ्री पंचेस वर, आई एम राइटिंग दिस लेटर हु हैज बीन योर रेजिडेंट. Last punch, discharge back, and you are advised to follow few instructions. Yeah, you are advised to provide ongoing care for his speedy recovery. Third punch, as you know that he was diagnosed with osteoarthritis in 2008, for which he required hip replacement, which has been done now after 2 years. तीन पंच पूरे हो गए. तीसरा पंच इतना जरूरी नहीं होता, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन सिर्फ ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो सेकंड पैराग्राफ. अगर एज यू नो वाली लाइन नहीं लिखनी तो सिंपल ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन टोटल हिप रिप्लेसमेंट वाज डन एंड पेशेंट, मतलब फिर धीरे धीरे वो चीजें बताने लग जाओ, एंड ड्रेसिंग वाज डन ऑन द डेली बेसिस. सो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो. इसके अलावा बस दैट सिंपल लेटर. बाकी और इसके अलावा हमने कल क्या डिस्कस किया था, हाँ एग्जीक्यूशन पार्ट वो हमने कर ही लिया है. और कैसे आइडेंटिफाई करना है ये डिस्चार्ज बैक लेटर है, हमेशा पेशेंट का एड्रेस जरूर देखो, और ये भी देखो किसको लिख रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है, तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि वो एग्जैक्टली लेटर क्या है. सो आई एम स्विचिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग, बट प्लीज लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग फॉर लाइक 2-3 टाइम्स. एक बारी में नहीं समझ आएगी. सो थर्ड बारी में आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा, और अगर बाय चांस आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत बची और फिफ्थ फोर्थ बार भी सुनी, तो आपको बिल्कुल खुद लिखना भी आ जाएगा. But at least listen to it 3 times so that you can understand it thoroughly. And now I'm going to take your questions. Please let me know how can I help you. So I'm just stopping the recording and we'll take your questions.